हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र संतानी आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं। So today we will start a new chapter, that is AC circuits. In AC circuit we have to first discuss with electrical networks. Electrical networks. So if you are talking about the electric networks in the field of electrical engineering, there are basically two types of network. First is AC networks, whereas second is DC networks. First is AC networks and second is DC networks. As the name implies, in the AC networks we have to deal with AC, whereas in the case of DC network we have to deal with DC. So first, the first question comes into our mind that what is the basic difference between AC or DC? AC stands for alternating current. AC stands for alternating current, whereas DC stands for direct current. DC stands for direct current. So what is the basic difference between these two, that is AC and DC? So first we have to see how the AC looks like. See, I am drawing a picture of perfect sinusoidal wave like this manner. On x-axis it is omega t, that is angle axis. On y-axis it may be voltage or it may be current. If suppose it may be voltage or current, then it is represented as small v is equal to capital Vm sin omega t. Here we are interested in that to see the basic difference between AC and DC, that when this omega t changes, this changes with respect to time. So when it changes, the magnitude of this voltage V, or if it is I, it can changes. How? At omega t is equal to 0, if we put omega t is equal to 0, sin 0 becomes 0. So see, the value is 0. When omega t is equal to 90, sin 90 is maximum. So here the maximum value of this voltage, and it is represented as Vm. We can later on we will discuss also what is the maximum value and other all. But here we are seeing only in the case how this value changes when omega t changes. Again, if omega t is 180, it becomes 0. If it is 270, sin 270 becomes -1. That means it is becomes minus of Vm. Means at every instant this particular voltage or current is changing with respect to time. This is the case of alternating current, that at every instant the value of voltage or current is changes. Whereas in the case of DC, suppose it is time axis, so voltage or current cannot change at any instant. That means it is perfect DC, pure DC cannot change its magnitude throughout the time. This is the basically main difference between AC and DC. Again I want to show you कि क्या difference बताया मैंने आपको कि हर इंस्टेंट पर AC में अल्टरनेटिंग करंट, हमने पढ़ा है 12th क्लास में, AC को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा, है ना। तो प्रत्यावर्ती धारा में हमने क्या पढ़ा है कि एट एवरी इंस्टेंट वैल्यू चेंज हो रही है, जो कि मुझे दिख रहा है कि हर इंस्टेंट पे ये वैल्यू चेंज हो रही है, तो इसको तो हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। वेयरएज डीसी को हिंदी में क्या बोलते थे 12th क्लास तक, अगर जो हिंदी मीडियम से स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, दैट इज टर्म्ड एज डिस्ट धारा। तो उसमें क्या होता था कि टाइम कितना भी हो जाए इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती थी। तो जो नेटवर्क्स एसी से डील करते हैं उनको हम एसी नेटवर्क्स बोलते हैं, और जो डीसी करंट से डील करते हैं उनको हम डीसी नेटवर्क्स बोलते हैं। डील करते हैं मींस द सोर्सेज व्हिच आर एक्साइटेड बाय डीसी करंट आर टर्म्ड एज डीसी नेटवर्क, whereas the sources which are excited यानी इनपुट जो हम दे रहे हैं, that excited by alternating currents, that networks are termed as AC networks. This is all the story of electric networks, that how they deals with AC and DC. टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC। डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC, कि AC और DC में क्या क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं। तो देखिए मैं यहां पर AC लिख देता हूं और यहां पे DC के बारे में लिख देता हूं। AC में हम बोलते हैं करंट का एग्जांपल ले लेते हैं, सेम इज फॉर वोल्टेज। करंट चेंजेस विथ respect to the time continuously. DC में क्या हो जाएगा, करंट do not changes with respect to time.
इसका मैंने आपको भी बताया भी था कि इसमें जो मैग्नीट्यूड होता है करंट का वो फिक्स है, जबकि यहां पर जो है करंट अगर है, मैं यही बना देता हूं, अल्टरनेटिंग नेचर का करंट होता है, तो टाइम के साथ में हमेशा, अगर साइनसोइडल एग्जांपल लिया तो करंट जो है टाइम के साथ में जो है साइनसोइडल कर्व के हिसाब से चेंज हर इंस्टेंट पे, यहाँ पे जीरो है या मैक्सिमम है या फिर जीरो है या नेगेटिव में मैक्सिमम और यहाँ फिर से जीरो, यानी हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है। तो सेकंड इसी से निकल के आता है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया इज 50 हर्ट्ज। भारत देश में एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। अमेरिका की अगर बात करें वहां 60 हर्ट्ज है। 60 हर्ट्ज का या 50 हर्ट्ज का क्या मतलब है? 50 साइकिल्स पर सेकेंड। 50 साइकिल्स पर सेकेंड का क्या मतलब है कि एक सेकेंड में एसी वेवफॉर्म 50 साइकिल कंप्लीट कर देती है। यानी ये साइकिल किसको बोलते हैं और डिटेल में अपन बाद में बात करेंगे आगे। ये मैं इसको एक साइकिल बोलूंगा, ऐसे 2 साइकिल, 3 साइकिल, ऐसे एक सेकेंड में जो है अल्टरनेटिंग करंट 50 साइकिल जो है वो कंप्लीट कर देती है। तो इंडिया की अगर बात करें तो फ्रीक्वेंसी अगर कोई बात करता है तो इट इज 50 हर्ट्ज, दैट इज 50 साइकिल्स पर सेकेंड। यही डीसी में दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा? द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी इज, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी इज 0। डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है क्योंकि ये चेंज नहीं होती है। थर्ड हो जाएगा, इट कैन बी स्टेप अप ऑब्लिक स्टेप डाउन इजीली। इट कैन बी स्टेप अप और स्टेप डाउन इजीली। कैसे? क्योंकि इसको स्टेप अप या स्टेप डाउन कौन करता है? ट्रांसफॉर्मर। तो अल्टरनेटिंग करंट में ट्रांसफॉर्मर यूज करके हम वोल्टेज या करंट को स्टेप अप और स्टेप डाउन बहुत इजीली कर सकते हैं। लेकिन इस केस में हम क्या बोलेंगे? इट कैन नॉट बी स्टेप अप ऑब्लिक स्टेप डाउन। चौथी बात इसमें करेंगे, लॉसेस इन ट्रांसमिशन इज लेस। इसमें जो ट्रांसमिशन अगर हम इलेक्ट्रिकल पावर का करते हैं तो इसमें लॉसेस जो है वो कम होते हैं, और इसमें हम बात करें तो लॉसेस इन ट्रांसमिशन इज हाई। एसी में इट हैज 3 पैरामीटर्स, इट हैज 3 पैरामीटर्स, दैट इज रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। मींस जब हम एसी सर्किट की बात करेंगे तो तीनों पैरामीटर से बात करेंगे, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस क्या है सर्किट का। लेकिन जब इस डीसी की बात करते हैं तो इट हैज ओनली 1 पैरामीटर, दैट इज रेजिस्टेंस। तो these are the basic 5 differences between AC and DC which I explained in detail. Next topic है हमारा advantages of AC over DC. Advantages of AC over DC. क्या मतलब है? टॉपिक का मतलब क्या है इसमें कि AC के क्या एडवांटेजेस है as compared to DC, because we are dealing with the chapter AC circuits, means we are saying that there are several advantages of AC if we are going to compare it with DC. तो देखिए पहला क्या है, पहला मैं यहाँ पे लिखता शॉर्ट में हूं, हम AC के केस में AC को इजीली स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं, जबकि DC को हम स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं कर सकते हैं। तो मैं इसको अगर शॉर्ट में लिखूं तो इट कैन बी स्टेप अप ऑब्लिक स्टेप डाउन इजीली, स्टेप अप और स्टेप डाउन इजीली। तो पहला एडवांटेज तो इसका जो है एसी यूज करने का ये हो गया। दूसरा हम क्या बोलते हैं, एसी मशीन्स जो होती हैं, एसी मशीन्स आर मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू डीसी मशीन फॉर द सेम रेटिंग। तो अगर मुझे जनरेशन करना है तो एसी मशीन से जनरेशन करना ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा इकोनॉमिकल रहेगा एज कंपेयर टू डीसी मशीन्स। इसी से तीसरी चीज निकल के आएगी कि इन
AC system have less transmission losses as compared to DC सिस्टम, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। सेम रेटिंग की मशीन के लिए इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, इकोनॉमिकल पड़ती है, यानी इसके लॉसेस जो होंगे वो क्या होंगे, एसी सिस्टम में एसी यूज करने से कम होंगे एज कंपेयर टू डीसी सिस्टम। चौथा अगर हम बात करें तो एसी सिस्टम में जो है हम लार्ज साइज जो है, द लार्ज साइज ऑफ जनरेटिंग यूनिट इज मेड, मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा बड़ी साइज की जनरेटिंग यूनिट जो है वो हम यूज कर सकते हैं। तो ये एक इसका जो है बेनिफिट होता है। और इसका जो लास्ट जो बेनिफिट है कि इट कैन बी यूज्ड एज सिंगल फेज और 3 फेज। मींस जैसे जैसे हमारे लोड की रिक्वायरमेंट होती है एसी सिस्टम में हम सिंगल फेज या 3 फेज सिस्टम यूज करके लोड की रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल कर पाते हैं। तो कुछ इन फायदों के चलते हम ये बोलते हैं कि एसी इज मोर एडवांटेजियस एज कंपेयर टू डीसी।